Hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So basically it's our lecture number 15 of our topic group theory, in which I'm providing you proper notes and question practice so that you can score good in GATE, NET and ITSM exams. Basically myself Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So let's start our today's lecture. So basically today we will see the concept of external direct product of groups. For example, let's suppose if I have two groups, G1 and G2, and if I do the external direct product, then this is the symbol by which we can denote the external direct product, which means if I write G1 cross G2, then it is the external direct product of any two groups. Then we will see that order of any element in this external direct product G1 cross G2, and then after seeing these two concepts we will solve the questions based upon the external direct product which are also came in NET, GATE and ITSM exams. So let's start our today's lecture with the first heading, that is external direct product. तो इसमें लिखिए, let's suppose if we have any two groups, let's suppose G1 is a group, and definitely if we have any group then definitely that identity will also exist. Let's suppose G1 has identity E1, so we can write down, let G1 is a group with identity, let's suppose identity is E1, and let's suppose G2 is a group, G2 is a group with identity, let's suppose E2. Clear? So if we have G1 group with identity E1 and if we have G2 a group with identity E2, then in this case we can say that the external product, then the external direct product, external direct product of G1 and G2 is denoted by, it is denoted by G1 cross G2, and basically it is also denoted as G1, then we will use the plus sign here and we will make a circle over the plus sign and then we will write G2. So it is called the direct product of G1 cross G2. Clear? So basically these signs are equal, means it is denoted by this, either this. Okay, so now we can say that basically it is denoted by this and defined as, और इसको हम लोग define कैसे करते हैं? So it is defined as, we can write here basically G1 cross G2 is defined as the ordered pairs of G1 comma G2 such that small g1 comes from the group G1 and small g2 comes from the group G2. क्लियर? मींस अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप G1 जिसकी आइडेंटिटी E1 है एंड एक ग्रुप हमारे पास है G2 जिसकी आइडेंटिटी E2 है, देन इन दैट केस G1 क्रॉस G2 इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ G1 कॉमा G2, जहां पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप से आता है एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड ग्रुप से आता है. तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट. एंड बेसिकली व्हाट विल बी द आइडेंटिटी? वी कैन से दैट G1 क्रॉस G2 इज अ ग्रुप, ये हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म करता है विथ आइडेंटिटी E1 comma E2. Clear? Basically it is a group with identity E1 comma E2. Okay, so now write down the next heading. Basically for example, let's suppose अगर मैं यहाँ पे example की बात करूँ, for example suppose if I have taken a group G1 which is Z2, because we know that हमें क्या मालूम है कि अगर मैं कोई भी Zn ग्रुप लेता हूं तो उसके साथ एडिशन मॉडलो n हमारे पास हमेशा एक ग्रुप बनता है. तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि व्हाट विल बी द ग्रुप हियर. फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट वी हैव टेकन G1 एज अ Z2, then what will be the group? Z2 comma
addition modulo 2, this will be our group. Clear? And if I take G2, let's suppose if I have taken Z2 as the, you can say, Z4. Clear? Then in this case we can say that Z4 with addition modulo 4 will be our group. So if I have taken G1 G2 as a group, then what we can say, that G1 cross G2, this becomes basically Z2 cross Z4 is a group. Basically it is also a group, you can say, is also a group. Clear? Similarly, let's suppose if I have taken any other example. For example, if I have taken G1, suppose G1 is D4. What is D4? It is a dihedral uh, group here. And let's suppose if I have taken G2 to be S3. And what is S3? S3 is nothing. It is the basically symmetric group. So if I define these sets, इस जो कि हमने इसके अलग अलग लेक्चर्स बनाए हैं, लेट्स सपोज अगर मैं D4 को डिफाइन करूं तो इसमें कैसे एलिमेंट्स आते हैं, इनमें हमारे पास हो जाएंगे दैट इज R0, R90, R180 and then we have R270. After that there is start horizontal, vertical, then diagonal and then anti-diagonal. Clear? And what is S3? S3 is the symmetric group जिसका हमने अलग लेक्चर पढ़ लिया है. इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें हमारे पास कैसे एलिमेंट्स आएंगे. फर्स्ट एलिमेंट इज आइडेंटिटी, देन वी हैव 1 2, देन 1 3, after that it is 2 3, then it is 1 2 3 and the last element will be 1 3 2. Clear? So we have two sets here, basically Z4 and S3. Now what we have to define, now if I define basically G1 cross G2, तो G1 क्रॉस G2 क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस बिकम्स D4 क्रॉस S3. और लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर इस सेट को डिफाइन करूँ तो इस सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास. तो इस सेट में हमारे पास लेट्स सपोज जो भी एलिमेंट आएगा, सपोज में हमारे पास A, B टाइप के एलिमेंट्स आएंगे सच दैट A कहाँ से आना चाहिए, A आना चाहिए हमारे पास D4 से, एंड देन अगर मैं बात करूँ B कहाँ से आना चाहिए, सो B बिलोंग्स टू S3. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज इफ आई हैव टेकन एनी एलिमेंट, अगर मैंने कहा कि R90, 1 2, ये हमारे पास किसका एलिमेंट होगा, देन दिस विल बी द एलिमेंट ऑफ D4 क्रॉस S3. क्लियर? ओके. नाउ सम अदर एग्जांपल्स. लेट्स सपोज इफ आई हैव टेकन एन एग्जांपल सच दैट, मैंने यहां पर क्या ले लिया, सपोज G1 हमने ले लिया Q8 एंड G2 हमने डिफाइन कर दिया लाइक S2. देन इन दिस केस वी कैन से दैट G1 cross G2, which is Q8 and cross with S2 is a group. क्लियर? तो अब आगे हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो हम इस स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे. क्लियर? तो इस तरह से अगर मेरे पास कोई भी दो ग्रुप्स हैं तो उनका मैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट करके ग्रुप को फॉर्म कर सकता हूँ. ओके. सो नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग. सो इसमें लिखिए ऑर्डर ऑफ, basically we are going to see the next heading based upon the order of elements. So write down the heading order of element in G1 cross G2. Clear? We are going to see the order of elements in the external direct product. So let's suppose if I have taken any external direct product, let G1 cross G2 is a group. हमने क्या लिया, G1 cross G2 को हमने एक ग्रुप ले लिया. एंड let's suppose if I have taken any element, because what we want the order of element. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट को ले लेते हैं. let's suppose कि हमने क्या एलिमेंट ले लिया, A, B is a element of G1 cross G2. then what we want the order of A, B, because we want the order of A, B. So what is the formula of order of A, B? So this is equals to the LCM of the order of A in first group G1 comma
order of B in the second group G2. Clear? So this will be our formula to find the order of group. Sorry, it is the order of elements of any group. For example, let's suppose if I have taken any G1 cross G2 like Z2 क्रॉस Z4, अगर मैंने कुछ इस तरह से G1 क्रॉस G2 ले लिया एंड देन आई हैव टेकन एन एलिमेंट, लेट्स सपोज आई हैव टेकन 1,3, ये मैंने कोई एलिमेंट लिया कहाँ से, Z2 क्रॉस Z4 से हमने एक एलिमेंट ले लिया और फिर हमसे क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है दैट फाइंड द ऑर्डर ऑफ 1,3, we have to find the order of this element. So what we have to find, we have to use this formula. Basically what is the formula, let's see. अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले को लिखूं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऑर्डर ऑफ 1,3. Clear? So what is the formula? Formula is the LCM of the order of first element, that is order of 1 in Z2, comma then order of 3 in Z4. This will be our formula. So let's apply this formula. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 को फाइंड करते हैं Z2 में. सो व्हाट वी नो दैट कि अगर मैं यहाँ पर 1 को देखूं तो 1 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए इन Z2, और वी नो दैट Z2 में आइडेंटिटी क्या होती है, इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी 0. तो अगर मैं 1 को 2 बार ऐड करूं देन व्हाट वी गेट 2, एंड वी नो दैट अंडर Z2 व्हाट वी यूज द एडिशन मॉडुलो 2. So when we use 2 addition modulo 2, so in this case we will get 0, that is identity. Clear? So 1 को मैंने कितनी बार ऑपरेट किया, 2 times, so 2 will be the LCM in this case, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है कि हम लोग Zn के अंदर कैसे हम लोग ऑर्डर निकालते हैं. So this will be LCM of, बेसिकली इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा 2. देन वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ 3 इन Z4. तो अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि 3 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं कि मुझे 0 मिल जाए. सो लेट्स सी, अगर मैंने 3 को 4 टाइम्स ऑपरेट किया देन व्हाट वी गेट 12 अंडर मॉडुलो 4. सो अंडर मॉडुलो 4 this becomes 0. So in this case, because 3 is operated 4 times, so 4 will be the order. So in this case, what is the order? It is 4. Clear? And we know that the LCM of 2 and 4, it is nothing but 4. So the order of 1,3 will be 4 is our right answer. Clear? नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया आपको जो कि हमारे पास PYQ क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं. लेट्स सी, इफ यू हैव G विच इज Z2 क्रॉस D3, अगर ये हमें एक ग्रुप गिवन है देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ 1, R120. क्लियर? इसका मुझे ऑर्डर फाइंड करना है. द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर A it is 6, option number B it is 3, and option number C which is 4, option number it is D which is 8. Clear? So basically because it is the same concept question, so I will say that pause this video and try to do this question by yourself, then I will solve the question. Okay, so now I will solve the question. Let's see हमें क्या गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप है वो हमारे पास किस में है, Z2 एंड D3 में हमारे पास ग्रुप है, और हमें किसका ऑर्डर निकालना है, 1 एंड R120 का. सो लेट्स सी, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं द ऑर्डर ऑफ 1 एंड R120 will be what, this is equals to the LCM of order of 1 in Z2 comma order of R120 in D3. क्लियर? हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे गिवन. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, लेट्स सपोज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 1 इन Z2 में हमारे पास 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा. तो अगर मैं 1 को 2 बार ऑपरेट करता हूँ देन व्हाट वी गेट 2, एंड वी नो दैट अंडर मॉडुलो 2 दिस बिकम्स 0, सो वी आर गेटिंग द आइडेंटिटी. तो 1 का ऑर्डर तो हमारे पास Z2 में 2 हो जाता है. सो दिस बिकम्स द LCM ऑफ 2. Now what is the order of R120 in D3? So we know that
कि अगर मैं यहाँ पर R120 को बेसिकली कितने बार ऑपरेट कर दूं, लेट सपोज अगर मैंने यहाँ क्या किया, R120 को ऑपरेट किया 3 टाइम्स, तो जैसे ही मैंने R120 को 3 टाइम्स ऑपरेट किया, देन व्हाट we get R360 and we know that R360 is nothing but R0, and R0 हमारे पास क्या होता है D3 में, it is the identity. Clear? So in this case what will be the order of this? It is our 1 2 and 3, so order will be 3 because मैंने इसको 3 times ऑपरेट किया, then we get the identity. So order will be what? In this case order will be 3. And what is the LCM of 2 and 3? This is 6. So what is the correct option? Basically option number A is my correct option in this question. Clear? So इस तरह के questions हमारे पास एग्जाम से पूछे जाते हैं, which is very easy with this concept. Now let's write one more question. Suppose अगर मैंने यहाँ पर एक question दिया आपको, the question is, okay, so write down the question. Let's suppose if we have a group G which is defined as Z6 cross D4, then you have to find the order of 2 comma R90. क्लियर? हमें इसका ऑर्डर यहाँ पे फाइंड करना है. सो अगेन pause this video and try to solve by yourself, then see the solution. Okay, now we will solve the question. Let's see. So in this question what is given to me, we need the order of 2 and R90. So what is the formula? Simply LCM of order of 2 in Z6 and the order of R90 in D4. Clear? This is the formula we can use here. So now what is the order of 2? Let's see. अगर मैं यहाँ पर 2 को कितनी बार ऑपरेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए. सो लेट्स सी, अगर मैंने 2 को 3 बार ऑपरेट किया, देन वी विल गेट 6 एंड अंडर मॉडुलो 6 दिस बिकम्स 0 व्हिच इज द आइडेंटिटी इन Z6. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2? बिकॉज 2 को हमने 3 बार ऑपरेट किया, देन 3 विल बी द ऑर्डर. क्लियर? एंड अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे. लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर. Basically we get the LCM of this value becomes 3 comma. Now what is this order? तो अगर मैं यहाँ पर R90 को basically 4 times ऑपरेट कर दूं, if I have operated R90 to 4 times, then what we get? We get R360, and we know that R360 is nothing but R0, and R0 is the identity in D4. So I have operated R90 4 times, then 4 will be our order. So what is the LCM of 3 and 4? Basically this becomes 12. So 12 is the correct answer in this question. Clear? Okay, so now let's write down some more questions. Okay, so write down the question which is very important question for your PYQ purpose. It is a very important question, you can say. Okay, so write down here. Let's suppose if we have G which is Z6 cross D4 and हमारे पास कोई एक एलिमेंट है x जो कि इस तरह से डिफाइंड है which is 5 R100 R180 and we have y which is defined as 3 h. Okay, so basically what is these things? अगर आप लोगों को ये चीज नहीं मालूम है, then you have to see my DN lecture. What is DN? It is the dihedral group lectures जो कि हमने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं. इसके ऊपर हमारे पास पूरी लेक्चर्स प्लेलिस्ट पर है. नाउ what is R180? It is the rotation. And what is H? It is the reflection. So now what we have to find? Then we have to find x o y. हमें सबसे पहले तो x को y के साथ ऑपरेट करना है और ये देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है. एंड वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ x. हमें x इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है. क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन in a easy way. So let's suppose what we have to find. सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को y के साथ ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है. लेट्स सपोज x को जैसे ही मैंने y के साथ ऑपरेट किया, देन व्हाट वी गेट, इट इज 5 R180 फर्स्ट एलिमेंट ऑपरेटेड विथ 3 and h.
तो जब कभी भी हम किसी दो एलिमेंट्स को इस तरह से ऑपरेट करते हैं, सो इट डिपेंड्स कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऑपरेटेड होगा अंडर दिस ग्रुप, एंड सेकंड एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा अंडर अंडर सेकंड ग्रुप. सो नाउ हाउ वी कैन ऑपरेट दिस, लेट्स सी. अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देन 5 and 3 will be operated and R180 and H will be operated like this. अब हमें क्या देखना है, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप था दैट इज Z6, तो Z6 के अंदर कौन सा ऑपरेशन लगता है, हमें मालूम है कि Z6 में हमेशा एडिशन मॉडुलो 6 लगता है. सो इन दिस केस वी कैन डायरेक्टली यूज हियर द एडिशन मॉडुलो 6 एंड वी नो दैट इन D4 हम यहाँ पर कंपोजिशन का यूज करते हैं. सो लेट्स सॉल्व दिस. तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इट इज बेसिकली Z6. सो व्हाट वी गेट हियर, लेट्स सी. ओके, सो इन दिस केस what I'm getting, let's see, 5 plus 3, so it becomes 8 modulo 6. ये तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया. नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड एलिमेंट, इट इज R180 ऑपरेटेड विथ H. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, R modulo 6 which means remainder will be 2. So 2 comma R180 operated with H. Now we will solve the second part also. तो सबसे पहले क्योंकि मुझे यहाँ पर D4 की बात की जा रही है, इन D4, तो D4 में हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं विच इज, लेट सपोज इट इज A B C एंड D लाइक दिस. और हमें क्या ऑपरेट करना है, हमें R120 एंड H ऑपरेट करना है. तो सबसे पहले हम क्या ऑपरेट करते हैं, इसमें H ऑपरेट करते हैं. तो जैसे ही हमने यहाँ पर H ऑपरेट किया, देन व्हाट वी विल गेट, वी नो दैट H इज द हॉरिजॉन्टल, विच मीन्स इसको हॉरिजॉन्टल के अराउंड हम लोग फ्लिप कर देंगे. तो A ऊपर चला जाएगा, D ऊपर चला जाएगा. जैसे ही हमने इसको फ्लिप किया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, देन व्हाट वी गेट हियर, लेट्स सी. Then in this case A will be here, D will be here and C and B will be here. So in this case हमने H ऑपरेट कर दिया. Then what we have to operate, we have to operate R180 now. जैसे ही हमने इसमें सेकंड R180 ऑपरेट किया which is R180, then what we get, basically 180 क्या करता है, 180 A को 2 कदम आगे ले जाएगा. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता जाऊं साथ साथ, then what we get, let's see. A becomes here, so A को मैंने यहाँ पर लिख दिया. Then this D becomes here in this corner, so D will be right in here, and then basically C, this C point comes here, क्योंकि हमने 2 स्टेप आगे बढ़ना है 180 के केस में, and then here it becomes B. Now compare these two squares. इसमें कौन सी हमारे पास कंडीशन लग रही है, तो अगर मैं देखूं ध्यान से, देन A एंड B हमारे पास राइट साइड में है और यहाँ पर A और B लेफ्ट साइड में आ गया. D एंड C एंड हियर इट विल बी D एंड C. तो अगर मैं इसको वर्टिकली फ्लिप कराऊं, लाइक इफ आई हैव फ्लिप इट वर्टिकली, देन दिस विल बी ट्रू. क्योंकि अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको वर्टिकली फ्लिप कराऊं, यानी कि V रिफ्लेक्शन, अगर मैं V रिफ्लेक्शन का यहाँ पे यूज करूं, which is V reflection, then we will get the same thing. Clear? So in this case what is the result, इसका मतलब क्या हो जाएगा, which implies that कि जब हमने R120 को H के साथ ऑपरेट किया, then what is the result, V is the result. तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, V is the answer in this case. Clear? लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमें x इनवर्स भी फाइंड करना है. सो लेट्स फाइंड आउट x इनवर्स आल्सो. नाउ so what is the value of x, we know that x is 5 R180 और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है x इनवर्स. सो इट बिकम्स 5 R180 का इनवर्स. सो दिस इनवर्स कैन बी रिटन एज 5 इनवर्स R180 इनवर्स. एंड वी नो दैट बिकॉज 5 हमारे पास कहाँ से आ रहा है, 5 हमारे पास बेसिकली इट कम्स फ्रॉम Z6. ओके, तो 5 हमारे पास कहाँ से आ रहा है, 5 हमारे पास आ रहा है Z6 से. और जब कभी भी हमारे पास Zn टाइप का कोई भी ग्रुप होता है तो उसमें इनवर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वी नो दैट इफ वी हैव बेसिकली Zn ग्रुप, देन A इनवर्स इज नथिंग बट -A. और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास ग्रुप है Z6. तो 5 इनवर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर लेंगे, इट इज -5.
क्लियर। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर R120 की बात करूँ, मीन्स R180, सो इन Z4 what is the inverse of any theta? Basically this is always equals to R360 minus theta, ये इसके इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर निकालूं R180 inverse, then what happened? It becomes R360 minus 180, so this becomes again R180. Clear? So what is the inverse here? Let's see हमारे पास इनवर्स क्या आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -5 अंडर मॉडलो 6, बिकॉज हमारे पास Z6 है, एंड हियर इट बिकम्स अगेन R180। तो अगर मैं यहाँ पर -5 अंडर मॉडलो 6 लगाऊं, यानी कि -5 + 6, तो इट बिकम्स +1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वैल्यू बिकम्स 1, R180 is the answer of our this question. Clear? Now write down one homework question. It's a similar question. देखिए, लेट्स सपोज अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहां पे जी हमारे पास क्या है, दैट इज D4 क्रॉस S5। क्लियर? और लेट्स से अगर मैं आपको अभी S5 का ग्रुप नहीं देता हूँ बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिक ग्रुप, सो आई हैव टू make a separate video for that. So let's suppose you have a simple group Z2 cross Z4, and now you have to find the possible orders, find the possible order of each element of each element in Z2 क्रॉस Z4। क्लियर? यू हैव टू फाइंड दिस। चलिए इसका मैं कुछ आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है Z2 क्रॉस Z4। तो सबसे पहले हम लोग Z2 क्रॉस Z4 को क्रिएट कर लेते हैं। Z2 में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, बेसिकली Z2 में हमारे पास 0 एंड 1 दो एलिमेंट्स आते हैं, क्रॉस Z4 में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 0 1 2 एंड 3 विल बी अवर एलिमेंट्स। नाउ लेट्स सी, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हम क्या लिख सकते हैं, 0, विच मीन्स कैसे लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट एलिमेंट, देन फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, थर्ड एंड विथ फोर्थ। तो मुझे कैसा ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे यहाँ पे, दिस बिकम्स 0 1 0 2 0 3। सिमिलरली अगर मैं 1 के साथ लिखना चाहूँ, सो दिस बिकम्स 1 0 1 1 1 2 and 1 3। Clear? So these are our elements of Z2 cross Z4. Now what we want to find the order of each element। हमें हर एलिमेंट का यहाँ पर ऑर्डर फाइंड करना है। सो लेट्स सपोज सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर आप लोगों को निकाल के दिखा देते हैं, सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऑर्डर ऑफ 0, 0। तो इसका फॉर्मूला हमें मालूम है, हम लोग कैसे निकालेंगे इसे, इट इज सिंपली द एलसीएम ऑफ order of 0 in the first group, that is Z2, and the order of 0 in the second group, which is Z4। We know that in Z2 0 का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, it is always 1 and 1 here also, so LCM will be 1। clear? Similarly अगर let's suppose अगर मैं यहाँ पर इस लास्ट एलिमेंट की बात करता हूँ, so order of 1 and 3, what will be here, so order of 1 and 3 will be the LCM of order of 1 in Z2 and order of 3 in Z4। so we know that कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ order of 4 की, clear, if I talk about let's see, let me erase this part, okay, so let's write down here, if I talk about the order of 1 in Z2, so simply order of 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार ऑपरेट करने पर 0 मिलेगा, एंड 3 को अगर मैं 4 बार ऑपरेट करूँ then we get 0 under modulo 4, so it becomes 4 here। so what is the LCM, 4। so in this way you have to find the order of these elements। clear? It is your homework question in this class। clear? okay, so now write down basically one more concept। देखिए एक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज अगर आपसे कहा जाए कि कार्डिनैलिटी ऑफ G1 क्रॉस G2 हमारे पास क्या होगा, व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ G1 क्रॉस G2, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, लेट्स सी।
अगर मैं ये कहूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ G1 क्रॉस G2, so this will be always equals to the order of G1 into order of G2. क्लियर? बेसिकली कार्डिनलिटी को हम लोग ऑर्डर से भी डिनोट करते हैं. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2. Clear? It is also denoted as like this. So order of G1 cross G2 will be always equals to order of G1 into order of G2. For example, let's see, अगर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में देखूं बताऊं, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं इसका ऑर्डर निकालना चाहूँ, लाइक इफ आई वांट टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ Z2 cross Z4, then what we get it is equals to order of Z2 into order of Z4. ऑर्डर ऑफ Z2 हमारे पास क्या होता है? 2. Z4 होता है 4, सो इट बिकम्स 8. यानी कि Z1 Z2 क्रॉस Z4 का ऑर्डर हमारे पास 8 आना चाहिए. लेट्स सी, are we getting 8 or not? So yes, 4 elements are here and 4 elements are here, so totally we are getting 8 elements, which means order is 8. Clear? So try this question as your homework and give me the answer in the comment box. Thank you.